उसने आपको और मुझे सबसे ऊंचा समझा, अपनी जान से भी ऊंचा समझा, अपने लहू बहाने से भी ऊंचा समझा, अपने कोड़े से भी ऊंचा समझा। क्योंकि एक ही कारण है, वो आपसे और मुझसे प्यार करता था, करता है और करता रहेगा। Thank you, Father, for considering us above yourself and giving your life for us, above the life that you gave. Thank you, Father, for valuing us to such an extent. Thank you, Master. Today I pray, Father, let the love of the cross so overtake and rule us. Let the love of the cross overrule every unforgiveness, O Master. Let the love of cross overrule every hatred, O Master God. Let the love of God overrule every misunderstanding, O Father God. Let the love of the cross overrule our very human nature, O Father God, so that we will be filled with the love of the Father by the Holy Spirit. If anything should drip out of us, let it be your love, O Father God. If not, help us to remain silent as you were silent. Teach us today once again, Lord. Our eyes are fixed on you. Speak. Speak through thy servant, O Master. हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के कान खुल जाए, आंख खुल जाए, हृदय की समझ खुल जाए परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी आज तू अपने दास के द्वारा वचन बोलेगा परमेश्वर, वो सिर्फ और एक संदेश ना होकर एक जीवन बदलने वाली, सच्चाई को ग्रहण करने वाली, तुझसे जुड़ने वाली एक वचन बन जाए। धन्यवाद देते परमेश्वर, फिर एक बार सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता। आमीन, आमीन। थैंक यू। एक बार जोरदार ताली हमारे जवानों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। चलो, yes. Okay. So we have, I think, मुझे लगता है सिर्फ मुझे इंट्रोडक्शन चाहिए, आप लोगों के लिए नहीं, right? Okay. Of course, we know we met Brother Chandrasekhar. We are meeting Brother Pastor Breeze for the first time. Okay, so we want to welcome you very quickly, right? So we don't want to take much time, so that we'll get into the word, right? So can I request both of you just come in front? Just a formal welcome, that's all, please. Yes. I request Dr. Isaiah, please. Yes. एक बार जोरदार ताली। आजा, आजा, आजा। Yes, so
We welcome you both once again in our midst. So we are going to spend some more time, 2-3 days. We are going to squeeze you all, I can say, right? Yeah. So we believe, हम मानते हैं कि परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ उन्हें लेके आए, एक वचन के साथ उन्हें लेके आए, और वो वचन हमारे बीच में परमेश्वर उसको फुलफिल करे, यही हमारी प्रार्थना है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आई रिक्वेस्ट पास्टर ब्रीस to come and share the word of God, whatever the Lord has put. एक बार और जोर से ताली मार के वेलकम करेंगे. Yes. Great pleasure and privilege to meet with you once again. ये सौभाग्य है मेरा कि आप सबसे मिलने की मौका मिला. Meeting Pastor James for the first time. Yes, मुझे पहली बार मिल रहे. I have seen him on the YouTube that you have uploaded in SRC, Okay. where I am also a member. तो जो भी हमारे सर्विस होते हैं ये YouTube पे देखते हैं हमें. And I am very glad that Brother Chandru also could join, because yesterday there was a lot of worries whether he could be joining or not. या हम खुश है कि ब्रदर चंद्रशेखर भी हमारे साथ में है. इट इज नॉट यस्टरडे, इट इज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, राइट? बहुत सारी चीजें हो गई, हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय में उन्हें यहाँ पे आने की जो रास्ता बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. So, Brother Chandrasekhar will be speaking on the theological aspect of the implications of crucifixion. ओके. जो थियोलॉजिकल दृष्टिकोण है उसके बारे में भाई चंद्रशेखर बात करेंगे. I like to introduce the physical side of death, that is crucifixion and death of Christ. ओके. स्वाभाविक या फिर नैसर्गिक रीति से जो क्रूज पर हुआ उसको मैं बताना चाहता हूँ. Why do we need to think and talk about the physical side of the death of Christ? जो स्वाभाविक दृष्टिकोण है उसको हमें क्यों देखना है? I'll explain that because it's very important for us. क्योंकि मैं उसको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि वो बहुत मुख्य बन जाता है हमें समझने के लिए. I was told by Brother Param Jyoti that tomorrow there is going to be a big procession in the city. संडे, या Sunday. संडे के दिन हमारे सोलापुर में बड़ा सा प्रोसेशन होगा, जो मेरवणिगे होगा. I understand it is connected to Baba Saheb Ambedkar. हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अंबेडकर के बर्थडे का जो प्रोसेशन रहेगा. But when we consider all these great men who have influenced human history, जब हम इन बड़े लोगों को देखते हैं जिन्होंने इतिहास में कुछ अपना स्थान छोड़ा है, their mission finishes with their death. उनका जो कार्य है वो उनके मौत के साथ खत्म हो जाता है. But for us, we know it is the fulcrum on which our life turns. तो हमें ये पता है, लेकिन हमारे जो कहानी है वो वहाँ पे खत्म नहीं होती. And that is the unique thing about Christ, that the story begins anew from the death of Christ. और यीशु मसीह का यही खासियत है कि उसके मौत से एक नई कहानी आरंभ होती है. Yes. And because of this, rationalists and naturalists down the century has tried to downplay the significance of death of Christ. ओके. इसी कारण कि उन्हें ऐसे लगता है ये कंटिन्यू हो रहा है या फिर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जो ज्ञानी है, बुद्धिमान लोग हैं, इस कहानी को नीचे दिखाने या फिर खत्म करने की कोशिश किया है. So some people say it did not happen. कुछ बोलते हैं ये हुआ नहीं, Some people say it's all a story. कुछ लोग कहते हैं ये कहानी है. So I'd like to mention some of those in a long introduction. तो कुछ लोगों को
इसमें मैं इंट्रोडक्शन या फिर शुरुआत के तौर पे बोलना चाहता हूँ, And that's going to be unusually slightly long introduction. और थोड़ा ये लंबा रहेगा. And then after that, we'll look at 7 aspects of the literal death of Christ. और उसके बाद हम लोग 7 विषयों को देखेंगे जो नैसर्गिक रीति से यीशु मसीह का मरण के बारे में. And when we understand both, जब हम ये दोनों चीजें समझते हैं, we'll understand how important and how unique is the resurrection that follows the death. ये अगर समझेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि जो पुनरुत्थान है वो नेचुरल या फिर नैसर्गिक मौत के बाद उसका मुख्यता या फिर उसका अर्थ हमें समझ में आता है. The resurrection of Christ is unique. Nowhere in history it is recorded by anybody else. यीशु मसीह का पुनरुत्थान कहीं किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, वो अपने आप में अनोखा है. I can't resist saying hello, Level uncle. After so long. Okay. अंकल को भी वेलकम करेंगे. So we'll look at slightly details about the physical death, and then resurrection becomes more important. जब यीशु मसीह के नैसर्गिक मौत को अगर डिटेल में देखेंगे तो उसका पुनरुत्थान का विषय जो है हमें सच्चाई में दिखाई देता है. Bart Ehrman is a well-known New Testament critic. एक व्यक्ति है बाश अर्मन जो नए नियम को क्या बोलते हैं, He is a critic. या टीकाकार या फिर नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले, That's it. नकारात्मक दृष्टिकोण रखने He वाले. is not a Christian, वो विश्व क्रिस्ती नहीं है but very famous among non-Christians और दुनिया के लोगों में बहुत प्रख्यात है as a firm critic of Christianity. और क्रिस्ती लोगों का बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला. And Bart, I start with Ehrman. Bart Ehrman is listing 15 independent sources from the first 100 years of Jesus' death. Am I Okay, yeah, using no long problem. sentences? No problem. I'll get it. Okay, तो अर्मन ने क्या किया, 15 चीजें उन्होंने ढूंढ के निकाली यीशु मसीह के मरने के 100 साल के बाद. 15 चीजें वो हमें बताता है. And to prove that Jesus really died on the cross. और टू प्रूव, Yes. ओके, वो 15 चीजें वो खोज के ये दिखाता है कि यीशु मसीह सच में क्रूस पे मर गया. And on the basis of proving the death of Christ, Ehrman proves that if he died, he lived. ओके, तो जब वो ये साबित कर रहा है कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया तो उसका उल्टा ये साबित होता है कि यीशु मसीह जीवित था. Because there was a long tradition of critics who tried to underplay the significance of Christ by saying that it's only a fable. He ओके, didn't live. तो ये साबित करने से क्या होता है, जिन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह था ही नहीं या फिर एक कहानी है या फिर कोई सोच है जिसे लोगों ने लिखा है, ये गलत साबित होता है. So I have a slightly long quotation. I'll just read it out to you to understand what Ehrman has actually said. ओके, एक लंबा सा सेंटेंस है, वो पढ़ेंगे इंग्लिश में, मैं कोशिश करूंगा. I'll break it and Yeah. see. Okay. And this is quoted by another New Testament scholar, Gary Habermas, who has studied resurrection for almost 40 years. ओके, एक और Gary Habermas. गेरी हेबरमस जो Yeah. क्या बोलते He has studied- बाइबल का थियोलॉजी पढ़ने वाला, वो उसने पुनरुत्थान को 40 साल पढ़ाई किया. And Habermas is quite old now, and he has published at least 20 books on resurrection. सो हेबरमस जो है वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने 20 पुस्तक लिखे हैं. And the latest, what he calls as the magnum opus, was released only a few years back. ओके, उनका नया किताब का नाम है मैग्नम ओपस.
अभी फिर हाल ही में उसको रिलीज किया गया। and it is only on the resurrection. Can you know how many pages it is? वो सिर्फ पुनरुत्थान पे है। आप जानते हैं कितने पन्ने हैं उसके? 5,000 pages. 5,000 पेजेस ओनली ऑन रिजरेक्शन। And he 5,000 पन्ने सिर्फ पुनरुत्थान पे। and he says और वो that कहता है he has not copied the whole of the 20 books he has already written. और This is something new. और वो कहता है जो पहले मैंने 20 किताब लिखे उनमें का कोई भी सब्जेक्ट इसमें नहीं है। So if those youngsters who search on the internet kindly search, you'll be astonished to see the kind of evidences he brings in. तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे या फिर गूगल में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे या फिर आपको आश्चर्य होगा कितनी सारी चीजें उन्होंने बताई। So Habermas is quoting Herman and saying that Jesus actually lived. तो हेबरमस जो है अरमन को कोट करके बोल रहा है, उसकी बातें बता के बोल रहा है कि जीसस सच में, यीशु मसीह सच में जीवित था। So he says like no accredited specialist in the field of religion, ओके no matter how liberal, how atheistic or whatever, none of them who have a university or college or seminary position, none of them teaches or claims that Jesus never lived. ओके कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर किसी भी उच्च स्तर का जो ज्ञान प्राप्त करते यूनिवर्सिटी लेवल तक, जो क्या बोलते Scholars, नो व्हाट यू कॉल एक्रेडिटेड, जो गुणवत्ता प्राप्त है, मतलब जो गवर्नमेंट परमिशन दिया है, राइट? ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह नहीं जीवित था। so, but at the same time, why did we say so much? At the same time, there are prominent voices which disclaims the fact that Jesus died. ओके इसके अलावा बाकी लोग हैं या फिर बाकी जो आवाजें हैं जो कहती है यीशु मसीह था ही नहीं। And Quran is one such major source. और कुरान भी इसके बारे में बताता है। In Surah 4, verses 156 to 57, ओके सूरा 4 156 to 157, हाँ it says that Jesus never really died. वहाँ पे लिखा या फिर ऐसे लिखा गया है कि यीशु मसीह सच में मरा ही नहीं। And they say it appeared to them that he was on the cross, but actually he was not on the cross. उनको लगता है ये सिर्फ जो सूली पे दिखता है, उनको लगता था ये जैसे है, लेकिन वो असल में था ही नहीं वहाँ पे। What is their explanation? Jesus escaped the cross, put Judas in place, and Jesus escaped. अच्छा, वो उसका अनुवाद कैसे करते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को बचा के वो भाग के गया और जूडस को उस क्रॉस पे डाला था उसने। Some innocent people might think that Islam is trying to save or rescue Christianity. कुछ लोग सोच सकते हैं कि इस्लामी जो है ख्रिस्ती लोगों को बचाने की कोशिश कर But रहा है। we know without the cross and without the death and without the resurrection, we have no hope. और लेकिन हमें पता है कि क्रूज के बिना, गाड़े जाने के बिना, उसके पुनरुत्थान के बिना हमें उद्धार नहीं है। So Satan always tries to dismantle the importance of the suffering and death of Christ. तो शैतान हमेशा ये कोशिश में रहता है कि वो जो यीशु मसीह ने क्रूज पर किया उसको नकारा जाए। That is why Jesus himself commanded the church to remember his death every time they gather. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जब भी तुम मेरे देह में और लहू में भाग लेंगे तो याद करना मेरी मौत को। And there is another sect in the Islam faith called the Ahmadiyya Muslims. ओके एक झुंड है जिसको अहमदिया मुस्लिम्स कहते हैं इस्लाम में। And they believe that Jesus
fled from Palestine, came to India, lived in Kashmir, and died there. तो उनका मानना है कि यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने के लिए जा रहा था तो वहां से वो निकल गया और भारत आया और कश्मीर में था। And they have a tomb and a pilgrim center in Kashmir. कश्मीर में आज भी कहते हैं यीशु मसीह का कब्र है, It's in Srinagar. वो श्रीनगर में है। So they are also trying to say, no, Jesus did not go through this suffering. He did not have to undergo the suffering. तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह तकलीफ नहीं उठाया या फिर क्रूज पर गया ही नहीं। But we say, no, Jesus died on the cross physically. लेकिन हम कहते हैं यीशु मसीह स्वाभाविक रूप से देह के रूप में वो क्रूज पर मरा। And from 19th century till recently, there are many people who have written about Jesus not dying on the cross. तो 19वीं शताब्दी से अब तक लेके बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की है लिखने की कि यीशु मसीह क्रूज पर नहीं मरा। So in this context, we assert that no, Jesus died on the cross. लेकिन इस बारे में हम बहुत ही विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह क्रूज पर मरा। Okay. Now, so that is my introduction. Okay. Why do we speak that Jesus died on the cross? तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, राइट? तो क्यों यीशु मसीह उस क्रूज पर देह में मरा? And we understand that the death of Christ or crucifixion of Christ was not an accident. तो हमें पता है कि ये कोई अचानक से हुई कोई चीज नहीं है। And we read in the scriptures, all the four gospels mention Jesus foretelling his death. तो हम चारों गॉस्पेल्स में देखते हैं कि यीशु मसीह मरने से पहले उसने अपनी मौत का ऐलान किया था। All these great men of history whoever met with death, this kind of death, they never knew that they were going to die. पुराने नियम में या फिर पुराने जमाने में जो बड़े लोग थे, विद्वान थे, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, किसी ने अपने मौत के बारे में पहले ही नहीं बताया। If they ever knew that they were going to die, they would have escaped. अगर उन्हें पता था कि हम ऐसे मर रहे, इस समय मर रहे, तो वो बचा लेते अपने आप को। That is what makes Jesus' death significant. He knew that he was going to die, and knowingly he walked to the cross. और यही बात खास बनाती है यीशु मसीह को कि वो जानते हुए भी कि मैं मरने वाला हूँ, वो उसी और बढ़ता है अपनी मौत की तरफ। Among many references, we'll read one or two from the Gospels. एक या दो विषय पढ़ेंगे हम लोग। Matthew 16:21. मत्ती उसका 16वां अध्याय 21वां वचन। And this is when Jesus is walking to Jerusalem. ये तब है जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर चलते जा रहा था। And that is probably the final march to Jerusalem. और वो आखिरी उसका सफर था यरूशलेम की ओर। And in 21 he is specifically telling what is going to happen in Jerusalem. और 21वें वचन में वो बहुत ही निश्चित रूप से कहता है कि यरूशलेम में मेरे साथ क्या होने वाला है। From that time Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and on the third day be raised. और एक बार पढ़ लेना। उस समय यीशु ने अपने शिष्यों को ये समझाने में लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा। यह अनिवार्य है कि मैं वहाँ धर्मवृद्धों, महापुरोहितों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं, मार डाल जाऊं और तीसरे दिन जीवित होकर। Yes. So this is towards the end of the ministry of Jesus. ये यीशु मसीह के सेवकाई का आखिरी समय है। Or does that mean when he observed the social circumstances, he came to an understanding, okay, these people are plotting against me, I might face a death? Is that out of his logical understanding? उसने ऐसे इसलिए नहीं कहा कि उसने देखा हाँ ये सब लोग मेरे विरुद्ध हो रहे हैं, ये लोग मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं, तो ये मुझे मारेंगे, ऐसे अंदाजे में नहीं कहा यीशु मसीह ने।
when he came itself, he knew he came for a mission. जब वो पैदा ही हुआ था उसको पता था वो क्यों आया था. So, in the beginning of the mission, what does he say? We read from John chapter 2. That's the beginning of Jesus. यूहन्ना के दूसरे अध्याय में यीशु मसीह के सेवाकाय के आरंभ में ही यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा था. 19 to 21. जॉन 2nd चैप्टर 19 से लेके 21 तक. Jesus answered them, destroy this temple, and I will raise it again in 3 days. Yes. Go They ahead. replied, it has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? But the temple he had spoken for was his blood. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. So, in the beginning of his ministry itself, he said, I am going to die, but on the third day I'll rise. अपनी सेवकाय के आरंभ में ही उसने कहा था मैं मरने वाला हूं लेकिन तीसरे दिन फिर जीव उठूंगा मैं. So, it was not an accident. तो वो कोई So, Jesus, right from the beginning of his ministry to till the end of his ministry, was consciously following to his route to the cross. यीशु मसीह अपने सेवकाई के आरंभ से लेके अंत तक उसकी एक ही लक्ष्य थी, वो अपने अंत की ओर बढ़ रहा था. So it was not an accident. ये कोई अचानक से कोई चीज नहीं हुई. It was not the result of mere plotting of Pilate or the Romans. ये ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उसके खिलाफ कोई योजना बनाई इसलिए ये चीजें हुई. And later on, we find that the historical Christian faith had its foundation in the death and resurrection of Christ. और हम जानते हैं कि हमारी मसीही जो विश्वास है ये सिर्फ उसके मौत और उसके पुनरुत्थान पे ही निर्भर है. And we find Paul writing to the Corinthians in 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय में पौल ऐसे लिखता है. And that is a famous passage on resurrection. और वो पुनरुत्थान के बारे में बहुत ही एक लिखा हुआ है. And he is fixing the foundation of Christian faith in the death and resurrection of Christ. और वो अपने सभाओं को अपने उनके विश्वास को यीशु मसीह के मौत और पुनरुत्थान पे निर्भर होने के लिए सिखा रहा है. Let us read from 13 to 17, chapter 15, 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 13 to 17. 13 से लेके 17 तक. And try to see how this is connected to our faith and our hope. और हम देखें कि ये हमारे विश्वास और हमारी जो निरीक्षा है उससे कैसे जुड़ी है. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 13 से लेके 17 वचन. But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain? Yes. Or your faith is also vain? Yes, and we are found false witnesses of God, because we have testified of the God that he raised up Christ, whom he raised not up. If so, be that the dead rise not. Okay, now, एक so हिंदी बात एक बार हिंदी में पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 13 से 17. 13 से 17 तक. यदि मरे हुए का पुनरुत्थान हाँ. ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा. Yes. और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है. वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाही ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया. यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा. Okay. और So, how closely connected is resurrection to the faith, to the preaching, to the hope, and to the practice of Christian life? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुनरुत्थान हमारे प्रचार करना, हमारा विश्वास और हमारी निरीक्षा से
कितने नजदीक से जुड़ा हुआ है। If there is no resurrection, there is no Christian faith. Yes. पुनरुत्थान नहीं है तो ख्रिस्ती विश्वास व्यर्थ है। And Paul is writing in Romans 1:5 also the significance of resurrection, by which Christ has proved himself to be the Son of God. रोमियो पहला अध्याय 5वां वचन में वहां फिर से पौल इसी बातों को दोहराता है कि पुनरुत्थान हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। Please read 1:5. रोमियो पहला अध्याय 5वां वचन हिंदी में पढ़ ले। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। Okay. So because of resurrection, he established himself as the Son of God. क्योंकि वो पुनरुत्थान हुआ इसलिए उसको परमेश्वर का बेटे का खिताब मिल गया। So resurrection and death are equal in our faith. तो हमारे विश्वास में उसकी मौत और पुनरुत्थान दोनों भी एक ही स्तर पर है। Amen. Some other critics, they say first century Christians were naive people. They were innocent. They were not educated. So they were trained to learn such fables, and they just studied. They understood. There is no evidence. तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो पहले यीशु मसीह के ज़माने के जो लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे, या फिर किसी ने उनको समझा बुझा के ये ऐसी कहानियां सुना के उनके विश्वास को बढ़ाया। But when we read the Gospels and the record, we understand people on those days were as intelligent as people in 21st लेकिन हम century. ये जानते हैं कि उस समय भी सभी लोग अनपढ़ नहीं थे, सभी क्या बोलते समझदार थे, बुद्धिमान थे, और वो उन्होंने भी इसको माना है। They used the faculty of logical thinking. और उन्होंने अपनी सोच का इस्तेमाल करके विश्वास किया। Let's look into a few examples. John chapter 9:32. यूहन्ना उसका 9वां अध्याय 32वां वचन। This is when 9वां Jesus is- अध्याय 32वां वचन। Jesus is healing a blind man. ओके, पढ़ लो। जगत के आरंभ से हाँ, यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आँख खोली हो। So they are telling, we have never heard about this kind of a miracle. तो वो ये अंधा जब देखने लगा तो वो कहने लगे हमने पूरी जिंदगी में हमने देखा नहीं कि एक अंधा देख रहा है, जन्म का अंधा अभी देखने लगा है। So they have seen the miracle, they have compared it with their experiences and information, and they have understood that this is unique. तो उन्होंने ये समझा कि जिसको हमने अब तक नहीं देखा, चमत्कार को देखा, उन्होंने समझा और अपने पुराने जीवन में जो कुछ भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया था, वो बोले ऐसा अनुभव हमने किया नहीं है। And the disciples who preached the gospel, they knew people would come up with such explanations. और जब शिष्यों ने प्रचार करना चालू किया तो उन्हें पता था कि ऐसे कुछ लोग आएंगे जो हमारे प्रचार या फिर विश्वास का विरुद्ध करेंगे। That is why Peter is talking in First Peter. Please read 2 Peter 1:16. तो इसलिए दूसरा पत्रस He is पहला अध्याय answering. 16वां वचन। He is answering this kind of a understanding which is probably in the mind of people. तो वो ये ऐसे लोगों की सोच के बारे में बता रहा है जो ये सोचते हैं कि ये सब कहानियां हैं। जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य तथा आगमन के विषय में बताया तो हमने चतुराई से गढ़ी हुई कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, So बल्कि अपने ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा। okay, so these are not cleverly devised tales, but these are the reports of eyewitnesses. तो वो पत्रस कह रहा है ये कोई चालाकी से बनाई गई हुई कोई कहानियां नहीं है, लेकिन ये आंखों देखी हुई चीजें हैं। And Paul also writes like this in 1 Timothy chapter 1:3. पहला तिमोथी Yeah, chapter 1:3. पहला अध्याय 3रा वचन। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दी कि
और प्रकार की शिक्षा न दे। Okay, so he is telling his whoever he is writing to, he is telling the church in Ephesus. He is telling, I have advised Timothy not to bring up tales. We have facts. तो पॉल Don't bring कहता up है, tales. तिमोथी को मैंने सिखाया है तू कहानियां मत बोल, सोचने वाली या फिर इमेजिनरी जो मन में सोचते हैं ना ऐसी चीजें मत बोल। Yeah. So don't bring up with cooked up tales. We don't need that. We have facts. काल्पनिक चीजों को मत बोल या फिर काल्पनिक कहानियों को मत बोल। And when Paul is speaking in Athens, he is appealing to the thinking people of Athens, the critics and जब एथेंस के लोगों से बात कर रहा है तो वो जो लोग सोचते बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ बात कर रहा है। Acts chapter 17, we know the famous preaching that Paul gives in Athens. प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में जो पॉल प्रचार करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ा है। And there, it's a long passage. We understand that he is talking about the death and resurrection of Christ as the focal point of the faith in Christ. ओके उनको उनके साथ जब बात कर रहा था तो उनके सामने उसने यीशु मसीह के मौत और उसके पुनरुत्थान को सेंटर पॉइंट या फिर मुख्य स्थान देकर उनसे बातें की। And in 1 Corinthians chapter 15, which we read in verse 8, पहला कुरिन्थियों 15 8वें वचन में जो हमने पढ़ा, Paul is telling there are a lot of witnesses mentioned, and then he says that there are 500 brothers who witnessed the resurrected Christ at once. और उस बहुत सारी चीजें बताते हुए वो कहता है कि यीशु मसीह जी उठने का 500 लोगों ने देखा है उसको एक ही बार। Yeah, at once. Yeah. And then he is adding another comment to it, that most of them are alive now. और वो ये भी कहता है जिन्होंने देखा है वो आज मतलब उस समय में जब वो कह रहा था वो अभी भी जिंदा है। So in AD 55, when Paul was writing this letter, there were a number of people who were alive who had literally seen the risen Christ. यीशु मसीह के बाद जो 55 साल में जो ये लिखा जा रहा था तब जो यीशु मसीह को जिंदा देखे थे वो लोग अभी भी जीवित थे। So there is a commentator by name Warren Wiersbe who has commented on this, saying that Paul was actually challenging the critics. And if you want evidence, go and talk to those people, they are alive. Yes, amen. Paul was challenging the critics. पॉल जो है जो नकारात्मक बात कर रहे थे उनको सवाल रखता है That if you doubt resurrection, कि अगर आप पुनरुत्थान पे अविश्वास करते हो, there are people still alive. उसने कहा ऐसे जिंदा लोग हैं जो अभी भी जिंदा है, जाके उनसे बात कर सकते हो। So what we believe, what we preach, and on what we base our hope, it's not a story, it's an incident. आज ये कहना चाहते हैं जिस बात पे हम विश्वास करते जो निरीक्षा हम में है वो कहानी नहीं है। It has always been disclosed as a historic event, a real life event. और लेकिन दुनिया में इसको ऐतिहासिक कोई हुई चीज बताते हैं और निश्चित हुई चीज ऐसे हम साबित करते हैं। Yeah, nobody told, no, you just believe that. Don't ask questions. It was not like that. Yes. You ask questions, you want evidence, go check, find, and believe. Yes, हमने जब amen. विश्वास करने को बोला हमने ये नहीं बोला कुछ पूछना नहीं है तुम्हें, सिर्फ विश्वास करना, कोई प्रश्न नहीं पूछना, सिर्फ विश्वास करना, ऐसे नहीं है। तुम जाओ पढ़ाई करो, प्रश्न पूछो, उसके बारे में सोचो, फिर तुम विश्वास करो। Amen. So religions try to disprove the death and resurrection of Christ. Islam, जो धार्मिक लोग हैं वो यीशु मसीह के मौत और उसके पुनरुत्थान को नकारते हैं and historians tries to disbelieve and spread disbelief that Jesus did not live and die. इतिहास को सिखाने वाले लोग ये दिखाना चाहते हैं कि ये चीजें नहीं हुई है
But right from the beginning, the disciples had been telling, yes, it happened. Yes. Yes, it happened. लेकिन हम पहले से जानते हैं जो यीशु मसीह के साथ थे उसके शिष्यों ने आरंभ से ये कहते हुए आ रहे ये सच है कि यीशु मसीह जिंदा था, वो क्रूस पर मरा और वो फिर से पुनरुत्थान हुआ है। So it is important. तो Yes, ये yes. हमारे लिए मुख्य बन जाता है। And it is on this that our faith is based, not on cooked up cakes. Yes. और इस Hallelujah. पर Amen. हमारा विश्वास है, कोई अनदेखी या फिर काल्पनिक चीजों पे हमारा विश्वास नहीं टिका है। Now we'll look into the 7 aspects of the death of Christ. तो हम 7 चीजों को देखेंगे यीशु मसीह के मौत के बारे में। And this is important because when we talk about the resurrection, we'll find that Jesus has answered and overpowered all these 7 hurdles. तो जब हम पुनरुत्थान की बातें करते हैं तो हम देखते हैं पुनरुत्थान होने के लिए जो 7 रुकावट है उसको यीशु मसीह ने जीत लिया है। Amen. The first one was constituted by the court, Roman and Jewish court. It was the trial of Jesus. तो पहली चीज है जो रोमियो का जो कोर्ट था, न्याय Yeah. व्यवस्था था, उन्होंने जो बनाया था उसको यीशु मसीह ने जीत लिया। So this was the first step that Jesus crossed. It was the trial. जो पहला न्याय का जो प्रोसेस या फिर क्या बोलते हैं घटना जो तरीका होता है Okay. है ना, उसको यीशु मसीह ने जीत लिया। And the Gospels record that at least 6 trials he faced in one night. That is, today night. Yesterday. Yesterday evening it started. Thursday. Yeah. तो गॉस्पेल्स में अगर देखेंगे तो 6 बार 6 उसके 6 trials. जज या फिर जो न्याय देने वाले थे उनके सामने पेश किया गया था 6 बार। Yeah, that's it. And some people say, no, this is all stories. लेकिन कुछ कहते हैं नहीं ये सब कहानियां हैं। But recently, that is in 1961, the port of Caesarea was excavated. ओके 1961 में जो पुरानी चीजों को खोद के निकालते हैं ना, Archaeologists. हाँ वो कुछ खोद के निकाले, खोज करके निकाले। There is a place called Caesarea near Tel Aviv, today's Israel. उसका उस जगह का नाम है सिसेरिया। It was named after Julius Caesar. और जूलियस सीजर जो राजा था उसके बाद उसका नाम रखा गया। And when they excavated, they found an inscription mentioning the name of Pontius Pilate. तो जब उन्होंने उसको खोद के निकाला तो उनको किसी पत्थर पे एक नाम दिखा जिसके ऊपर लिखा गया था पोंटियस पाइलट। So Pontius Pilate was a real person, तो it's not इसका a ये fiction. मतलब होता है कि पोंटियस पाइलट जो सच में था, कोई काल्पनिक चीज नहीं। Yes, amen. And Jesus was tried in front of Pontius Pilate, the governor. और यीशु मसीह को पोंटियस पाइलट के सामने न्याय के बारे में पेशी की गई थी। There were 6 trials that he faced in one night. एक ही रात में यीशु मसीह ने 6 बार 6 लोगों के सामने या फिर 6 परिस्थितियों में उसने न्याय का सामना किया। And it is listed in the Gospels. और ये बातें हमारे गॉस्पेल्स में लिखी गई है। And if you want, you can take down the references. Need not read all of them. It might take time. जो लिख लेना चाहते हैं उनको सिर्फ रेफरेंसेस हम बताएंगे। First trial was before Annas, the high priest. पहला जो न्यायी वाद विवाद चल रहा था वो अनास। याजक अनास के सामने, That is John 18:13. यूहन्ना 18 13. 13वां वचन। Yeah. यूहन्ना 18वां अध्याय 13वां वचन, पहला वाद विवाद। हाँ। I have the Yeah. reference here. No. The second was in front of another high priest by name Caiaphas. तो दूसरा जो वाद विवाद हुआ वो कैफस के सामने हुआ था। It is recorded in Matthew 26, 26वां अध्याय 57. 57 Okay. मत्ती उसका 26वां अध्याय 57वां वचन। And the third trial was in front of the Sanhedrin. That's a group of judges, Jewish judges. तीसरा वाद विवाद जो हुआ था और वहाँ पे
एक नहीं 2-3 न्यायी रहेंगे, उनके सामने ये वाद विवाद हुआ था। And that is recorded in Matthew 26:59. ये भी मत्ती में 26वां अध्याय और 59 का वचन। And then comes to Pilate, the Roman governor. उसके बाद उसका पेशी पीलातुस के सामने हुआ था। Pilatus. 27:2 Matthew. उसका रेफरेंस है मत्ती उसका 27वां अध्याय 2 वचन। And then the king of the Jews, that is Herod, और उसके बाद यीशु मसीह का पेशी ये हेरोद के सामने हुआ था। Luke refers it in 23:7. उसका रेफरेंस है लूक। लूक उसका 23वां अध्याय 7वां वचन। Okay. And finally again he comes back to Pilate. Yeah. और हेरोद के बाद उसको फिर से पायलट के सामने लेके आते हैं। That is also 23:11 to 25. जो आखिरी वाद विवाद होता है वो लूक 23वां अध्याय 11 से लेके 25 तक। And these trials were mandatory in the Roman judicial system of the first century. रोमियो के न्यायी विषयों में ये सारी चीजें होना जरूरी था। So without trial, you can't condemn a criminal to any punishment. क्योंकि वाद विवाद के बिना किसी व्यक्ति को दोषी करार नहीं किया जा सकता। And it happened not just once, one was sufficient, but in Jesus' case, it was 6 ones. एक ही बस होता था, लेकिन यीशु मसीह के केस में 6 बार उसको वाद विवाद किया गया। So both the Jewish court as well as the Roman court were interested in administering punishment to Jesus. रोमियो और यहूदियों दोनों का एक ही लक्ष्य था कि वाद विवाद करते हुए भी यीशु मसीह को शिक्षा मिले। Because they had political, religious and economic reasons to get rid of Jesus. क्योंकि उनको लगता था यीशु मसीह एक खतरा है हमारे राजनीति के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, आर्थिक कई सारे जो मुद्दे थे जो नेचुरल थे। जब उन्होंने खतरा महसूस किया तो सभी ने डिसाइड किया यीशु मसीह को दोषी करार करेंगे। Both Jews and Romans feared Jesus because of political reasons. यहूदी और रोमियो दोनों ही यीशु मसीह से डरने लगे क्या बोलते पॉलिटिकल राजनीति के लिए। Okay, because the Jewish leaders were becoming more and more worried about the increasing popularity of Jesus. क्योंकि उन्होंने देखा यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग भी जा रहे थे, उसका नाम भी बढ़ रहा था। But they did not want to stain their hands in the blood of Jesus. लेकिन उन्होंने सोचा हम अपना हाथ लहू से खराब नहीं करेंगे। So they want to put the Romans in charge of execution. तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, रोमन के तागाल दिया जो रोमियो है वो लोग इसको शिक्षा दे। So they said he claimed to be the king, which means he is raising a claim against the Roman Caesar. इसीलिए यहूदियों ने क्या किया, वो चालाकी से ये कहने लगे कि ये अपने आप को राजा कहता है, जिससे रोमियो को ये गलत चीज लगे। Yeah. And the Romans also felt that Jesus could create a revolution. और रोमियो को भी लगता था कि यीशु मसीह कोई एक बागी की तरह कुछ क्रांति लेके आ सकता है। Paul Meyer is an acclaimed historian of the 21st century. He has studied this and made a comment like this. And he says that from BC 63 onwards till the time of Jesus, there were more than a dozen revolutionary uprisings against the Romans from the Jewish community. ओके, एक व्यक्ति ऐसे कहता है, यीशु मसीह के 63 साल से पहले से लेके यीशु मसीह के समय तक कई सारे 20 से भी ऊपर ऐसे लोग उत्पन्न हुए जो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे। Which means when Jesus was making some kind of a claim like this, they obviously were afraid. तो जब यीशु मसीह अपने आप के बारे में ऐसी चीजों को बोल रहा था तो स्वाभाविक रीति से रोमी भी डरने लगे और यहूदी भी डरने लगे। And the Jewish people had economic reasons also to oppose Jesus. यीशु मसीह को विरोध करने के लिए यहूदियों के पास आर्थिक विषयों के बारे में भी कोई कष्ट थी। We have seen how he opposed
the business that was thriving in the temple. और हम देखते हैं कि जब यहूदियों ने देखा कि मंदिर में जब यीशु मसीह ने उनके बेचने उस पर रोक लगाई तो उनको उस पर भी विरोध करने लगे. And there were religious motives also, because more and more people are following Jesus and they could challenge the Jewish religion. और धार्मिक विषय भी थे जिसके लिए यहूदी डरने लगे कि ये आके कई सारे चीजों को बदल देगा. So these were the political, religious and economic reasons which prompted these people to be against तो Jesus. ये सारी बातें जो धार्मिक हो या फिर अर्थव्यवस्था की हो या फिर राजनीति की हो, ये सारी चीजें जो है इनको उत्साह किया कि यीशु मसीह को हम नीचे गिरा दें. Okay, so this is about trials. ये वाद विवाद के बारे में. That's point number 1. ये पहली बात. And the second point दूसरी बात is death by crucifixion. और क्रूस पर मारा जाना. And how specific that crucifixion meant. Let's see. और हम देखने जाएंगे कि क्रूस पर मारा जाना क्यों विशेषता हो गई. It is read that Persians actually started death by crucifixion, not the Romans. ओके, ये क्रूस पर मारना रोमियो का तरीका नहीं था, पर्सियों का तरीका था. Herodotus and Thucydides are famous Roman historians who has written about that. ओके, Yeah. जो रोम के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने इस बातों को लिखा है. And you know, Persia is today's Iran. Okay. जो पर्सिया है वो आज का जो ईरान है उसको पहले पर्सिया. And they liked crucifixion because they believed that because the dead body doesn't touch the ground, it will not pollute their ground. ये क्रूस पर इसीलिए डालते थे क्योंकि जो मरता है वो जमीन को नहीं छूता, उसका जो मरा हुआ मुर्दा है वो जमीन को नहीं छूता, तो इसलिए जमीन क्लीन रहती है. And later on, when we read about the Greeks, Alexander introduced this crucifixion to the Mediterranean world. ओके, जब सिकंदर अलेक्जेंडर ने इसको सिकंदर ओके, जब सिकंदर ने उसको बताया इसको क्रूसिफिक्शन को इधर Mediterranean. अपने Area. एरिया में जब उसने आरंभ किया. And the cruelty of crucifixion, Cicero is a Roman historian. He has written like this: it is most cruel and hideous of all tortures. ओके, तो कहते हैं क्रूस की मौत जो है सभी तरह के जो यातना दे के मारते हैं ना, उन सभी चीजों में सबसे उच्च स्तर की यातना देने में है. Yeah, and Josephus is a famous Jewish historian who has written about Jesus also. He's not a Christian. जो जोसेफस बोल के जो इतिहासकार है उसने भी इस बातों को लिखा है. And he has mentioned about crucifixion as the most wretched of all death. उसने लिखा है कि क्रूस पर मरना सबसे नीचा Yeah. बहुत ही शापित बोल सकते हैं, या फिर जो सोच नहीं सकते ऐसी मौत है. And people in the Roman world feared crucifixion to such a level that Josephus says that when the Romans captured the Jewish people and they threatened that they are going to kill one of them by crucifixion, everybody surrendered. वो उसका क्रूस पर मारा जाना इतना डर बैठ गया सबके लिए कि अगर कोई विरोधी आता है या फिर यहूदी आते तो उनसे कहते आपको क्रूस पे डालेंगे तो सब लोग डर जाते हैं. And there are uprisings. You get one person and say, I'm going to crucify them, everyone will surrender. जब झुंड क्रांति के लिए उठती है तो वो कहते हैं उसमें से एक को चुनो और क्रूस पर डालो, बाकी सब चुप बैठ जाएंगे. Yeah. And crucifixion, first, it started in the Roman world, AD 20s by Tiberius. And the first process in crucifixion started by whipping. ओके, क्रूस का
It was in AD 20s. 20. 20s. 20वें शताब्दी में Tiberius. क्रूज पर मरना चालू हुआ था और इसका आरंभिक जो प्रथा थी वो था चाबुक से मारना। Oh, yes, yes. And the accused is, as we have seen in Passion of the Christ, you might have seen, the accused is tied to a post with both hands, with bare back. His clothes are taken off. जो हमने देखा है जब चाबुक मारते हैं तो हमने मूवी में देखा है पैशन ऑफ क्राइस्ट में कि एक आदमी को एक खंबे के साथ ऐसे बांधते हैं जिसकी पीठ पे कोई कपड़ा नहीं रहता है और उसके पीठ पे चाबुक मारा जाता है। And the flagrum, the whip, had many leather thongs. और वो जो चाबुक था उसके ऊपर कहते हैं चमड़े की Metal and bones. चमड़ा और हड्डी हड्डी का टुकड़े रहते हैं उसमें। And what they normally do is they hit and then they pull. वो मारने का तरीका था कि ऐसे मार के जब फंस जाता वो मांस में तो उसको खींचा जाता। And normally it will take away everything on the back and even sometimes even the intestines will come out. तो कहते हैं जब वो मारते थे इस तरह से तो मांस भी निकलता और अंदर से आतड़ी बोलती उसको। जो भी अंदर आपके शरीर में वो भी निकलता। Yes, yes, yes. Yeah, Eusebius is a 3rd century historian who has written about it. He has written church history, Eusebius. He also has written about it. और जो कलीसिया का इतिहास लिखा है उसने भी इस बारे में समझाया। Will Durant is a 21st century historian. He says that this whipping turns the body to a mass of swollen and bloody piece of flesh. जब ये चाबुक मारा जाता है तो इंसान सिर्फ एक मांस का मुद्दा बन जाता है। And this whipping, along after whipping, they were given a crown of thorns. और जब चाबुक मारने के बाद वहीं पे छोड़ते हैं उनके सर पर कांटों का एक ताज बना के रखते हैं। And there are 2 kinds of thorny bushes in Palestine. और ये कांटे जो है जिसका ताज बनाया जाता है ये 2 तरीके के हैं। And both of them have thorns from 1 to 2 inches long. और ये 1 से 2 इंच लंबे कांटे होते हैं। They keep the crown and then hit it. और सिर्फ उनके सर पे ऐसे रख के उसको मार देते हैं, कील मारे जैसे। And then the person who was crucified will have to carry the vertical pole of the cross. जो आड़ा जो लकड़ी रहता जिसको मारा गया वो खुद अपना वो आड़े वाला लकड़ी खुद बोझ लेके चलना पड़ता था उसको। In most of the pictures we see Christ carrying the cross, but when we study first century history crucifixion, it may be only the vertical pole that he might have carried. हम लोग यीशु मसीह को फोटो में क्रूज को लेते हुए जाते हैं तो लेकिन एक्चुअली में अगर पढ़ेंगे तो शायद एक ही लकड़ी था ऐसे। So not the vertical but the horizontal. जो आड़ा लकड़ी था सिर्फ वो लेके जाते थे। And this horizontal bar usually weighs up to 100 pounds, that is 50 kilograms. तो ये जो लकड़ी था ये कम से कम 50 किलो का था। And it is tied to the hands. और वो हाथों से बंधा हुआ था। So which means the hands are not free. इसका मतलब हाथ तुम्हारे खुले नहीं है। And this person who had underwent all these whippings और ये आदमी जो अब तक इन चाबुकों से मारा गया था and जो has a crown of सर पे thorns कांटों का ताज पहनाया गया था and then carries 50 kilogram weight और a उसके log, ऊपर 50 किलो का जो लकड़ी था उसको लेके जा रहा है and his hands are tied to the log, और वो हाथ जो है उस लकड़ी से बंधे हुए हैं and they normally took the longest route through the town to the site of crucifixion. और वो नजदीक वाला रास्ता नहीं दूर वाला रास्ता लेके जाते जहां पे उनको क्रूस पर मारा जाता।
Why? Because the Romans wanted every citizen to see what happens to a rival. तो क्यों ये ऐसा करते थे? क्योंकि जब वो दूर रास्ते में या फिर जो शहर था उसमें सब घुमाते हुए लेके जाते, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे या फिर डर पैदा करना चाहते थे कि जो हमारे विरुद्ध जाएगा उसको ऐसी सजा मिलेगी। And our Lord, he did not sleep the previous day. He had all these trials. और पिछले रात में यीशु मसीह सो नहीं सका क्योंकि उसको पेशी थी 6 बार। And then he couldn't drink or eat anything. उसने कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। And then in the morning started the torture. और ये सवेरे उसका कष्ट आरंभ हुआ। And then he walks with this weight, और with ये torn back. बोझ को लेके उस चाबुक से मारा हुआ पीठ और सर पे ताज लेके ये चलना आरंभ करता है। And we understand he was very tired that he couldn't carry it on himself. और इसलिए हम जानते हैं कि क्योंकि वो इतना सताया गया था, वो बोझ लेके चल नहीं पा रहा था। And he fell many times. और इसीलिए वो कई बार गिरता था। And that is why they took the help of Joseph of Arimathea. ओके, इसीलिए उन्होंने Sorry, not Joseph of Arimathea. साइमन, Simon the Cyrene. हाँ, साइमन जो था उसको उन्होंने कहा तू इस क्रूज को लेके चल। So imagine you falling down. And normally when we fall down, we protect ourselves. How? By our hands. जब भी हम गिरते हैं तो पहला हम अपना हाथ टेकते हैं। And because of that, we won't hurt ourselves. तो जब हम हाथ टेकते हैं तो बाकी शरीर पे ज्यादा चोट नहीं लगते। But suppose your hands are tight लेकिन अगर आपके हाथ ही बंधे हैं and then you fall to the front with 50 kilograms on your shoulder, तब आप सामने गिरते अपने मुंह के बल 50 किलो के उस लकड़ी को लेके, so your back and your stomach is already torn, ये and तुम्हारा then you fall to the ground. It is उसका not पीठ carpeted, you know. उसका पीठ और उसके मांस सब जो चोट से भरे हुए, And then you gradually walk up to the cross. You're tired, and some of them even fall on the ground. और जैसे जैसे चलते जाते हैं, जब क्रूज तक उस स्थान तक जाते हैं आप गिर जाते हैं। And the crucifixion was with nails, और जो iron nails. और जो जब क्रूज पर मारते थे तो हाथों में कीले मारते थे। Yes. And it is not on the palms, और वो जैसे हम लोग फोटो में देखते हैं यहाँ हाथ के बीच में नहीं, because if you can't hold your weight on the palms. क्योंकि it will यहाँ पे fail. मारेंगे तो आपका शरीर का वजन नहीं पकड़ेगा, ये फट जाएगा ऐसे। So this is where you have the median nerve, doctors. इसीलिए I have read you have the median nerve here, and between these two bonds, the nail goes in. और उसे यहाँ पे मारा जाता था, जो भी है मेडिकली, राइट, उसके बीच में मारा जाता था जो नर्व हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। And because of that, the weight can be held on the क्योंकि इस cross. पर मारा जाता था इसलिए आप उस पर लटक सकते हैं। And these nails are 6 to 7 inches long. और ये जो कीले थे 6 से 7 इंच लंबे रहते। And this was excavated from in archaeology. They have found literal bones with nails in it. ओके, जिन्होंने खोज की है उन्होंने देखा है कि ऐसे हाथ मिले जो कीलों के साथ है। Because the Jewish community, they don't bury their dead in the mud. The graves are cut on rocks. ओके, क्योंकि यहूदी मिट्टी में नहीं दफनाते, वो पत्थर के कब्रों में रखते हैं। And normally families have their own graves. तो उस जमाने में हर एक फैमिली अपना अपना कब्र तैयार करके रखता है। And when somebody dies, the old bones are collected and kept in a earthen vessel. जो उसी कब्र में जब पुराने गाड़े जाते थे, जब दूसरा कोई व्यक्ति मरता है तो पुराने हड्डियों को लेके एक मटके में जमा के रखते हो, And it is called ossuaries. उसको ओशरी बोलते हैं। And these ossuaries were excavated in Palestine, and in one of them they had a
a bone here with a nail in it. और जब खोजियों ने इसको खोजना चालू किया, उसमें से उनको ये मिला कि एक कील मारा हुआ एक हड्डी मिला उनको। So they understood what is described about the Roman punishment about Jesus is true. तो तब उनको पता चला कि जो रोमियो क्रूज पर डाल के मारते थे वो कैसे था। And then after crucified, many people die immediately. जब क्रूज पर डालते थे तो लोग बहुत जल्दी मर जाते थे, But those who do not die, लेकिन जो नहीं मरते थे they are gradually suffocated to death. तो उन वो ऐसा ऐसा मरने लगते, Yeah, they cannot breathe. दम घुटता था उनका। The pain is there, everything is there, but you know, when you hang like this, if you men, if you have tried pull-ups, you understand. For you to breathe, you'll have to raise yourself. ओके जब हम लटकते राइट, तो लटकने के बाद अगर सांस लेना है तो हमें थोड़ा ऐसे ऊपर जाना पड़ता है। So what happens? You have the pain here. With that, you have to pull yourself up. तो जब ऐसे लटके हुए जो हाथ में दर्द हो रहा है, आप ऐसे ऊपर खींचना है अपने आप को, And then you push with your leg, which is also nailed. ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैरों में भी कील है। So there is pain, but suffocation. Suffocation is more difficult. So you undergo the pain and pull yourself up to breathe, and then again you slam. तो जब भी सांस लेने के लिए उन्हें ऊपर उठना पड़ता, तो हर बार सांस लेने के लिए दर्द को और सहना पड़ता। And therefore, death by crucifixion is a slow, gradual, painful death. तो इसीलिए क्रूज पर मारा जाना बहुत ही आहिस्ता और दर्दनाक मौत थी। And because of this is when in the night bodies are taken out, if the person is not dead, they'll break the legs. और जब लोग अगर नहीं मरते, उनकी मौत नहीं होती, तो उनको मारने के लिए वो लोग उनके घुटने तोड़ देते। So they are not able to push themselves up. So suddenly they will suffocate and ताकि die. वो सांस लेने के लिए अपने आप को ऊपर नहीं कर सकते और वो दम घुट के मर जाते। And in Jesus' case, we see that when his side was pierced, there was a spilling of blood and water. और जब यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखते हैं, जब भाला लेके उसके बाजू में उन्होंने चुभाया, तो वहां से रक्त और पानी बहा। And some medical doctors who have studied this, they have called this as hematodrosis or something, I forgot, okay, where extreme anxiety breaks the pericardium and then you die. Just leave it like that, okay. Some people have studied this. Okay, and the Romans used to write the crime on the cross. Oh, okay, okay. तो रोमियो जो थे वो क्रूज पर लिखते थे कि इसने क्या गुनाह किया। And they even used to, Roman soldiers, if the criminal had good pair of clothes, they used to take the clothes and divide among themselves. और जितने भी उनके कपड़े थे, वो सब लेके वो लोग उसको अपने आप में डिवाइड करते थे। And if the body has to be taken down, cool. I think it works. Yeah, fine. Yeah, it goes. Check. Yes. It's okay. The body, before it is taken down, Roman officials will have to come and certify the death. और उस देह को नीचे उतारने से पहले रोम के अफसर आके ये लिख के देना पड़ता था कि ये आदमी मर गया। And all this was done in case of Jesus. और ये सारी चीजें यीशु मसीह के लिए की गई थी। And then this is to ensure that he literally died. ये बात क्यों बता रहे कि ये बताने के लिए कि यीशु मसीह सच में हमारे लिए मर गया। So the trial
happened, उसका न्याय का वाद विवाद and then the crucifixion on the cross. और क्रूस पर मारा जाना दूसरी बात। And the third, तीसरी बात, he was taken to a rock solid tomb. और उसको एक पत्थर के कब्र में लेके गए। And we see that the ladies who come to apply these spices, जो स्त्री आए थे उस देह पे द्रव्य लगाने के लिए, that is a Roman custom. वो रोमियो का Jewish custom. यहूदियों का एक रीत रिवाज है। And when they are coming, they talk among themselves. और जब वो आ रहे थे तो अपने आप में बातें कर रहे थे। And they ask, who shall move the stone for us? तो वो बातें करते हुए ये प्रश्न कर रहे थे कि जो पत्थर लगाया गया है कब्र के सामने, कौन हमें उसे हटाएगा? And John is saying, a great stone was rolled to close the opening of the और grave. यूहन्ना लिखता है जब यीशु मसीह को कब्र में डाला गया, उसको बंद करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उन्होंने उस कब्र के मुंह पे लगाया था। So Jesus was buried not in mud that he can escape that way. He was buried in a rock cut tomb. तो यीशु मसीह को कोई मिट्टी में या फिर कहीं और नहीं दफनाया गया, वो पत्थर के कब्र में जहां से निकल नहीं सकते उस जगह पे उसको दफनाया गया था। And the fourth factor we find और चौथी चीज है, is the Jewish burial custom. और जो है यहूदियों का गाड़ने का जो तरीका है या रिवाज है। Okay, the body is transported to the tomb and it is wound with linen clothes. और जब वो देह को क्रूस से निकालते हैं, उसको सफेद कपड़े में लपट के उसको फिर कब्र की ओर लेके जाते हैं। So when you are bound from outside, for you to escape, you need outside help. You can't escape from inside. जब आपको पूरा ऐसे कपड़े से लपटा गया है तो आपको निकलने के लिए बाहर से किसी का सहायता जरूरी है, अपने आप नहीं बचा सकते। Because some people say Jesus did not actually die, he only fainted on the cross, and then when he came to the cool atmosphere of the tomb, he revived, broke this, rolled the stone, fought the Roman guards and escaped. एक पिक्चर बनाते राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हो गया था। तो उसको जब उस कब्र के पास लेके आए तो जो वहाँ पर वातावरण था बहुत अच्छा था, तो उसके अंदर फिर से सांस आई या फिर वो होश में आया और अपने आप को छुड़ाया और रोमियो को मार के भाग के गया। And removed this huge stone also. और वो बड़ा पत्थर भी अकेले हटाया। And somebody listening to, there is a theory by called swoon theory, SWOON, which means Jesus only fainted. Jesus तो did not die. एक ऐसा कहना या फिर सोच है जिसको कहते हैं यीशु मसीह मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हो गया। That is why we say he actually died. इसीलिए हम ये घोषणा करते, वो सिर्फ बेहोश नहीं हुआ था, वो मर गया। And they, when they wrap, they add these spices, about 100 pounds they add. और उसे जब कपड़े में लपेटते हैं तो वो द्रव्य उसके साथ में लपटते हैं। And head is covered by a separate cloth. और सर पे या फिर मुंह को पूरा ढकने के लिए एक अलग सा कपड़ा वो इस्तेमाल करते हैं। And John is describing all this in detail. और ये सब बातें यूहन्ना बड़े अपने लिखने में बहुत अलग अलग करके बताता है। And so that is Jewish burial, the fourth factor. The तो fifth is, चौथी बात जो रीत थी यीशु मसीह को दफनाने की। and the fifth factor और is, पांचवा चीज है, it is the closing the tombstone which closes the entrance. तो वो पत्थर के बारे में है जो कब्र को बंद करती है। And it is normally weighing between 1.5 to 2 tons. 1.5 से 2 टन तक उसका वजन होता है। And nobody lifts it. It is rolled through a crevice and then left in that. उसको हटाने को नहीं आता है या फिर ऐसा सरका नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा रास्ता बनाते हैं, वहां पे उसको ऐसे रोल किया जाता है। And normally you roll down an incline and then comes to the door of the tomb and
it is stationed there. उसको ऐसे ऊपर से नीचे की ओर रोल करके वो कब्र के सामने उसको बंद करते हैं। And for you to escape or to save somebody, you will have to roll it up. तो अगर उसको निकालना है या फिर हटाना है तो आपको उसको ऊपर की ओर ढकलना पड़ेगा। And the Greek word used by John and Luke when they talk about this stone is that the stone appeared as if it was taken away. और जब जॉन और लूक इस पत्थर के बारे में लिखते हैं वो बोलते हैं, वो ऐसे नहीं लिखते कि इसको रोल किया गया, ऐसे लिखते हैं कि उसको उठा के रखा गया था। Okay. And the sixth important aspect of the death and burial is Roman guard. छठी बात है जो रोमियो के जो सिपाही थे उनके बारे में। And Roman guards, you know, they were notorious for protecting whatever is entrusted to them. ओके और ये रोमियो के जो सिपाही लोग थे, जब कोई चीज उनके हाथ में देते ना, वो किसी भी हालत में उसको पकड़ के रखते। Because if it is lost, they'll lose their lives. क्योंकि अगर वो जो चीज इनके हाथ में दी गई है, अगर वो गुम गई तो इनकी जान ली जाएगी। We find an incident in Acts chapter 12 when Peter and others, because of the earthquake, is freed from the prison. इसको हम प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में देखते हैं, जब पतरस जेल में रहता है और भूकंप होता है, जो जेलर था वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है ये सोच के कि ये लोग भाग गए। So why should the soldier kill himself when the prisoner is escaped? और एक सिपाही अपने आप को क्यों मारे जब एक कैदी भाग जाता है? If you can cook up a story and bribe a few people and escape punishment, why should you kill yourself? अपने आप को मारने का क्यों? कोई कहानी बनाए, किसी को कुछ दिए और अपने आप को बचाए। But they knew if a prisoner escapes, then I am doomed, the worst case. लेकिन उनको पता था जब उनको कुछ उनके हाथ में कुछ करने के लिए दिया जाता, अगर वो उसमें चूक जाते तो उनकी मौत निश्चित थी। And they'll face the most terrible death, probably crucifixion. That is why they thought it is easy to suicide. तो उनको ऐसे लगता था अगर हमने अपने ड्यूटी करने में चूका तो हमको भी क्रूस पर मार सकते, इसलिए क्रूस के मौत से बचने के लिए क्यों ना हम अपने आप को मारे। And normally it is a platoon of 16 men who are assigned for such guard duties. तो जब भी ऐसी ड्यूटी देते थे, एक या दो नहीं रहते, एक झुंड रहता जिसमें 16 लोग कम से कम रहते। And the 4 is always alert. They stand in front of the door or place or whatever you are entrusted to. और इन 16 लोगों में 4 लोग हमेशा चौकन्ना रहते, जहाँ पे वो जिसको उनको संभालना है उस जगह पे खड़े रहते। And after 4 hours, this 4 shifts and another 4 comes. तो 4 घंटे के बाद शिफ्ट होते, ये 4 लोग जाते और दूसरे 4 लोग आते। But the remaining 12, they don't go away. They take rest और immediately there. बाकी 12 कहीं और नहीं चले जाते, वहीं पे रह के वो विश्रांति लेते। And if there is a failure, all the 16 will face equal punishment. और एक से भी अगर चूक हो गई तो जिसने गलत किया उसको नहीं, पूरे 16 लोगों को पनिशमेंट मिलता। And this is important because the later on the story they developed is that when we slept, his disciples came and stole his body. क्योंकि बाद में जब कहानी बनाते हैं या फिर इन 28, we'll read Matthew 28, 11 to 15. मत्ती उसका 28वां अध्याय 11 to 15. 11 से 15 तक। मत्ती 28 अध्याय 11 से 15 तक। मत्ती 28 11 से 15। नहीं थी, कुछ पहरेदार नगर में आए, उन्होंने महापुरोहितों को सब घटनाएं सुनाई। महापुरोहितों ने धर्मवृद्धों से मिलकर ये परामर्श किया और सैनिकों को एक मोटी रकम देकर कहा, लोगों से कहना कि रात को जब हम सोए हुए थे तो यीशु के शिष्य आए और उसे चुरा लिए गए। Okay. Now you look at the impossibility of that story. इस कहानी को थोड़ा अगर ध्यान देके सोचेंगे, Because as per the Roman custom,
you cannot sleep. ये असंभव इसलिए लगता है क्योंकि आप ड्यूटी पे सो नहीं सकते, If you are found sleeping, you will die. क्योंकि अगर आप सो गए तो आपको मार दिया जाएगा। And if one person is not managing properly, everyone will get equal punishment. अगर एक भी व्यक्ति अपना काम ठीक से नहीं किया तो बाकी सबको शिक्षा होगी। Suppose so the 4 that are standing in front are sleeping, others will wake them up because they are also going to get the punishment. क्योंकि अगर एक भी वहां पे सो गया तो बाकी जो है वो उसको उठाएंगे, क्योंकि उसके वजह से उनको भी शिक्षा मिलेगी। So if sleep has to happen, who should sleep? अगर सोना ही है तो कौन सोना चाहिए? All the 16 should sleep together. सारे के सारे सोना चाहिए, Because if one is sleeping, the other is seeing, they'll wake up. क्योंकि एक सो गया बाकी उठा है तो वो उठाएगा उसको। So if there is to be a sleep, everyone should sleep at one time immediately. तो अगर ये कहानी अगर सच माना जाए तो इसका ये मतलब होता है कि 16 लोग एक ही समय पे सोए हुए थे। And another question is, if they all fell asleep, how did they see that the disciples came and stole it away? अगर कहानी सोचे कि जब वो बोल रहे हम सो गए थे और शिष्य आए तो बोले तुम सो गए, तो कौन आके लेके गया? शिष्य आके लेके गए, कैसा बोल सकते हो? And if the disciples have actually stolen the body, we find that later on the same disciples are preaching that Christ has risen in the same place, Jerusalem. अगर ये कहानी पे विश्वास करेंगे कि कहते हुए कि शिष्यों ने उसको चुराया, लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि वही शिष्य मंदिर में आके ये बोल रहे यीशु मसीह जिंदा है, हमने देखा है उसे। And you know, Golgotha and Jerusalem are nearby hills. It's not very far away. गोलगता और यरूशलेम बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। So, if these people are preaching, as we have seen in 1 Corinthians 15, if they are preaching a lie, they can easily dismantle the lie by producing the body. अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर इनका संदेश झूठा है तो ये लोग उस मरे हुए मुर्दे को ढूंढ के निकाल सकते थे। So the Romans or the Jewish community can easily defeat the disciples without threatening them just by producing the body. और अगर रोमियो वो मुर्दे को लेके आते या फिर उसका शरीर लेके आते तो शिष्यों को गलत साबित कर सकते थे। So, and some people say, no, the disciples themselves stole the body and they started preaching, he rose. लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने देह को चुरा के फिर उन्होंने प्रचार किया कि वो जिंदा हुआ। Then they should be mad. जिन्होंने देह को चुराया और बोल रहे अभी जिंदा है, इसका मतलब वो पागल ही रहेंगे। Because by preaching the resurrection, they are putting themselves in trouble. अगर खुद ने देह को चुराया और अब आके ये कह रहे वो जिंदा है तो अपने आप को खतरे में डाल रहे। They get no benefit by preaching Christ crucified. क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं है कि वो ये प्रचार करे कि जिसको हमने चुराया वो अभी जिंदा है। And another thing is they are putting themselves in trouble preaching a lie. क्योंकि और दूसरा खतरा ये है क्योंकि वो एक झूठ को प्रचार कर रहे हैं। And would you do that to tell a lie and face consequences, or tell the truth and escape problems? आप झूठ बोल के अपने आप को खतरे में डालना चाहते हैं या फिर सच बोल के फ्री होना चाहते हैं? Yeah, everybody does that. तो क्योंकि वही करते हैं सब लोग। So the Roman guard fleeing or the disciples coming and stealing the body is impossible. ये जो कहानी लिखी है या फिर कहने को कहा था, ये सारी चीजें अगर सोचने पे देखेंगे तो ये असंभव है या फिर झूठी लगती है। And the seventh and last और आखिरी चीज is the Roman seal. और आखिरी चीज है जो रोमियो उस पत्थर पे अपना थप्पा मारे। ओके, थप्पा मारे। Okay. We find this in Daniel's book where Nebuchadnezzar has put his signet ring. इसको दानियल की किताब में भी हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने अपना अंगूठी का सिक्का मारा था। So what does it signify? इसको क्या दर्शाता है? Anybody who is tampering with
the signet is fighting against the king. इसका ये मतलब हुआ जो कोई भी इस ठप्पे के खिलाफ कोई बोलता है कुछ करता है वो इस राजा के खिलाफ कुछ कर रहा है. And Bart Ehrman is saying that the signet ring proves that Jesus' body was really inside. वो रोमियो का सिक्का ये साबित करता है कि यीशु मसीह का देह उस कब्र में था. If there was no body, then there is no need of a guard and no need of a Roman seal. अगर शरीर ही अंदर नहीं था तो सिक्के की भी जरूरत नहीं है और सिपाहियों की भी जरूरत नहीं है. So all these facts, when you put together, you have no other narrative than Jesus Christ crucified and buried. ये सारी चीजें अगर ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो हमें पता चलता है बाकी सारी चीजें गलत हो सकती है लेकिन यीशु मसीह मरना और गाड़े जाना ये सत्य बात है. Why people deny this is because they can't face the truth of resurrection. ये सारी बातें लोग क्यों नकारते क्योंकि उन्हें पुनरुत्थान में विश्वास नहीं होता है. So, in order to disprove resurrection, they try to disprove the death. क्योंकि पुनरुत्थान उनको नकारना है इसलिए क्या करते हैं मौत को भी नकारने की कोशिश करते हैं. And they have brought in all different stories. इसलिए वो अनेक काल्पनिक कहानियां लेके आते हैं. Islam said it is not actually Jesus. इस्लाम कहता है वो यीशु मसीह नहीं था. Jesus escaped and he gave somebody else, Judas, his shape, and Judas was crucified. कहते हैं यीशु मसीह भाग गया और जूडस को अपने जैसे बना के उस क्रूज पर डाला. So Jesus becomes a deceptor. तो यीशु मसीह धोखा देने वाला बन जाता है. And he did not die and we are not saved. तो वो मरा नहीं और हम उद्धार पाए नहीं. And all these varied theorists, they are bringing in all these theories to rule away resurrection. और ये सारी चीजें क्यों बताए गए क्योंकि उन्हें पुनरुत्थान गलत साबित करना है. And the death and burial of Jesus was so secure, and on this ground we'll understand how important and how powerful is the power of resurrection. ये सारी बातें जब देखते हैं इतना मुख्य बातें जब साबित होती है तब हमें पुनरुत्थान जो सत्य है उसके बारे में उसकी विशेषता हमें पहचानने में मिलती है. That's for the next day. And thank you. तो आज के लिए इतना काफी है. आगे का सेशन आगे. थैंक यू सो मच. हाँ या हालेलुया. कहानियां बहुत है. कहानियां बहुत मिलेंगी आपको. अब तक आइए आगे भी आती रहेंगी लेकिन जब तक आपका विश्वास कि यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूज पर मरा, मेरे पापों के लिए उस क्रूज पर मरा, वो गाड़ा गया था और वो जिंदा हुआ, जब तक आपका विश्वास इन तीन चीजों के स्तर पर निर्भर है, मैं कहता हूं कोई कहानी आपको बहला नहीं सकती. आमेन. No story can deceive you if your faith is in the crucifixion, burial and resurrection. Amen. Hallelujah. जैसे भाई ने बहुत एक पहले ही उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. वो ये नहीं बोले बिना प्रश्न पूछे विश्वास करो. I always tell that. नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ हमारा परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता. कॉलर पकड़ के नहीं बोलता विश्वास कर. नहीं, वो बोलता है प्रश्न पूछ. यू रीजन. बुलाता है हमें, इनविटेशन देता है, कम लेट अस रीजन टुगेदर. आजा बातचीत कर. तेरा क्वेश्चन क्या है? तुझे लगता है मैं जिंदा नहीं हूं? जिंदा प्रूव करके दिखाता हूं. तुझे लगता है मैं मरा नहीं? मैं प्रूव करके दिखाता हूं मैं किस लिए मरा. मैं कहता हूं आज आप इतना शांत आराम से बैठे, क्या बोलते हैं, गिल्ट फ्री बैठे है ना. क्या बोलते हैं गिल्ट फ्री, जो अपराधी मनोभाव के बिना बैठे. अगर जो किया लिस्ट बनाए तो
लेकिन फिर भी अपराधी मनोभाव के बिना बैठे हैं। क्यों? हमें पता है हमने किया है, हम नकार नहीं रहे कि हमने गलत नहीं किया, हमने किया है, लेकिन जो क्रूस पे हुआ उसके कारण आज इतना फ्री बैठे हैं। ये हमारा विश्वास है। आमेन। सो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर ऑल द डिटेल्स, राइट। मुझे लगता है एक उत्तेजन मिलता है कि हम और पढ़ाई करें, है ना। ऐसा जब सुनता हूं ना, मुझे लगता है मुझे बहुत कम मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है मैं, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन। एक गाना गाएंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। रेडी? यस? खत्म नहीं हुआ? ओके, सो वी आर गोइंग टू डिग इन एंड गेट सम मोर थिंग्स। और कुछ बातें परमेश्वर जब हमको सिखाएगा तो हम अपने आप को उसके लिए तैयार रखें, समझने की कोशिश करें।